Are you starting your career with Google Ads? Do you know about the opportunity that Google provides? There are bonuses in this episode. Watch till the end some of the best business strategies also unveiled by our guest tonight. I am Divyanshu Malik. Welcome to my second episode of Divyanshu. And today, as a guest, I have with me Raghav Shadija, who is a senior optimization consultant at VWO, a Google ad expert, a Google business and top marketer award winner. Has also been invited to Singapore post his winning the competition. Oh, I have unveiled some of the secrets. What are you waiting? Let's अपना go. फर्स्ट क्लाइंट लाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ये कर सकते हो। एंड आई क्लेम टू यू कि अब तक गूगल एड्स के किसी भी पॉडकास्ट में ना मैंने किसी को बताया ना किसी को मैंने बोलते हुए कीवर्ड्स इज नॉट द थिंग, देयर इज मोर टू बिजनेस। कन्वर्जन रेट 3% है, तो 3% लैग क्यों है? पहले सामने वाला कोल्ड कॉफी बेच रहा है तो तुम उसमें चॉकलेट डाल के बेचो और आइसक्रीम डालो, इससे अलग हो जाओ। Thank you so much, Raghav, for joining me here. So I'm obliged to have you. थोड़ा अपना इंट्रो दे दो मेरे को। आज थोड़ा लेट कर दिया मैंने आपको, तो कोई बात नहीं दिव्यांशु, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल kudos to the initiative that you have taken. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टू कॉल स्पेसिफिक पीपल हु हैव सम एक्सपीरियंस इन एन इंडस्ट्री और अ टूल, ताकि हम आपको या और आपकी ऑडियंस को अच्छे से गाइड कर सकें। सो my introduction happens to be like my name is Raghav Shadija. I happen to be called as Raghav in most of the cases. The famous YouTube channel. Right. Sorry. मेरा एक्सपीरियंस मेनली गूगल एड्स को बिलोंग करता है। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर प्रोमिनेंटली 4.5 years if I say it specifically. मैं भी सीनियर ऑप्टिमाइजेशन कंसल्टेंट हूँ एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिसका नाम है VWO. I have been working here, and my mainly experience revolves around Google Ads, and I am a 2 times international award winner for Google Marketing Online Challenge, and also known as Google Online Marketing Challenge, GOMC. And I'm the only one in India to happen to win this award twice. I'm not boosting it, guys, but this is something about me. Okay. For this Google competition, Raghav will explain us surely. So to begin with, so how did you started with Google Ads? So when did you came to know about it? A little about your early life, right, when you started your profession. Right. So इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको अपना बैकग्राउंड कंटेक्स्ट बताना पड़ेगा. I happen to be a software engineer by the peer pressure. Okay. I started my software engineering back in 2013. पर मेरा mainly I was earning my pocket money, my bread and butter while I was 18 by teaching tuitions for computer science and math, and I was prominently designing posters, banners, flyers and all. थोड़ी बहुत graphic designing से 18-19 की एज में मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता था. तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था, एंड I was very keen about computers, started my career with software engineering, happened to realize in my post graduation that I was not meant for this. वो फरहान का डायलॉग है ना कि अगर मैं ये बना 3 Idiots में कि अगर मैं इंजीनियर बना तो मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा. So I chose to that is the exact time in my post graduation when this happened to me कि गूगल का ऑनलाइन चैलेंज के बारे में मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया था रात के 11:30 बजे, और उसने मुझे बोला था कि डिस्प्ले एड्स बनानी पड़ेंगी इसमें, जिसके लिए डिजाइनर चाहिए बेसिकली. तो तुझे डिजाइनिंग आती है, गूगल एड्स हम सीख जाएंगे इस कंपटीशन में, एंड व्हाई डोंट यू कम एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द टीम. एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट, विल आई गेट अ सर्टिफिकेट फॉर पार्टिसिपेशन. दे वर लाइक प्रोजेक्ट का नाम तो मिल जाएगा बट सर्टिफिकेशन अभी डाइसी है. तो आई वाज लाइक ओके आई विल डू इट. द ब्रांड नेम, बिकॉज हर एक इंजीनियर का एक सपना है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी उसके सीवी में कहीं ना कहीं जुड़ जाए, ताकि मैं कुछ प्रेजेंट करने लायक हो जाऊं जब मैं जॉब पे बैठूं, जब मैं जॉब देने बैठूं. तो वहां से उस होप से मैंने शुरू किया था अपना करियर कि गूगल ऑनलाइन मार्केटिंग चैलेंज में कुछ होगा मेरे पास जो गूगल से शुरू होगा, और गॉड नोज वेयर आई गो. सो ऑन दैट होप वी वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड, day in and day out, working on a particular challenge for 8 months of expertise under the चार as a team काम करते थे. My department was Google search ads and display ads designing.
और Okay. उसमें YouTube एड्स भी था, हमने सर्च एड्स भी पढ़ी सब थी, बट डिपार्टमेंट डिवाइडेड थे और वो बिकॉज टोटली न्यू था आपके लिए, मतलब एकदम? मेरे लिए पूरा न्यू था। मैं गूगल एड्स क्या होते हैं, गूगल एड्स गूगल एडसेंस से कैसे अलग है, ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था मुझको। 8 months की रिग्रेस, आई वुड रादर से कि मेरे एग्जाम्स स्टेक पे आ गए थे। मैंने इतनी गूगल एड्स पे फोकस कर लिया था, इतना मैंने गूगल एड्स पे फोकस कर लिया था कि एग्जाम्स में मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं आए थे। बट मैं सोच चुका था कि इंजीनियरिंग इज नॉट समथिंग दैट आई वुड बी गोइंग फॉरवर्ड विथ। तो नेवरदलेस, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, आई हमने हमारा कंपटीशन कंप्लीट हुआ मई में। 28 अगस्त रात के 11 बजे मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आता है कि राघव, यू नो व्हाट, वी हैपन टू विन दिस कंपटीशन फ्रॉम द एंटायर एशिया पैसिफिक रीजन। हम सब में से एशिया पैसिफिक में फर्स्ट आए थे। एंड एक ओवरनाइट ड्रीम ट्रू हुई थी। एंड गूगल ने हमें एज अ हम्बल इनविटेशन सिंगापुर बुलाया था इन 2018। ओके, सो जो हम को सुन रहे हैं, मतलब राघव ने इंजीनियरिंग के दौरान इसको पता चला कि गूगल एड्स का कोई कंपटीशन होता है जो गूगल ही कंडक्ट करता है, एंड दे आर कंडक्टिंग एवरी ईयर, राइट? So I sadly call myself the last of the winners because Google Online Marketing Challenge जो मैंने जीता वो लास्ट था उस ईयर का। उसके बाद इस कंपटीशन को चेंज कर दिया गया है। Now it is called Google Ad Grants Online Marketing Challenge, and the rules are pretty different for that. It is not for businesses. It is only for non-for-profit. It is a way to only learn search ads, and somewhere we also learn about the communications that we need to maintain कि client से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे strategy formulate करनी चाहिए and all. तो मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए कि 2017 में तो जीत लिया, बट एक होता है ना कि शायद लक था वो। I happened to re-participate in that competition in 2019 for Google Ad Grants, to be very specific, and I won the top market too. So that is why I call it to international. That is great. That is great. Thank you. So like you won 2 times in Google Ad competition. So this is the one way you could start with Google Ads. So you should be in university, right? For the graduation, who are doing post graduations. Yeah. This is for them, right? No, it's someone who has a degree. Currently, any degree you are holding and you are in your college, you can participate. Okay, so this is the one thing how you can start your career with Google Ads. Like you can enroll for a Google competition and you need a team for it, right? Right. So all the details you can get that in Google support also. And Raghav, what he has told us, you can start with this also. So Raghav, what are the learning sources when you actually enrolled yourself in that? So how did you manage to like win the competition 2 times when you didn't know actually a thing about it? मतलब कुछ नहीं पता और फिर भी जीत लिए। मैं आजकल देखता हूँ गूगल एड्स पे जैसे कि लोग सफर करते हैं, मतलब कन्वर्जन नहीं आ रहे और कितना पढ़ने के बाद, इंस्टीट्यूट जाने के बाद, उसके बाद भी वो गूगल एड्स को मास्टर नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स रहती हैं। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? आपने सही बोला दिव्यांशु, ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ रहती है, राइट? एंड बिफोर आई एक्चुअली टेल यू द रिसोर्सेज कि कहां से क्या परस्यू करना है, मैं 2 चीजें पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ। गूगल एड्स इज नॉट that easy. ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि it is one of the most complex tools ever made for advertising purposes. अगर ये बात हम ध्यान में लेके चलेंगे तो हम डर जाएंगे, हम परस्यू नहीं करेंगे उस चीज को। तो there are 2 things that I require or you should have before you pursue a career in digital marketing, specifically Google Ads से शुरू करते हुए। एक है willingness. आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए शुरू करने की, नहीं कंप्लीट करने की। राइट। विलिंगनेस शुरू करने की तो आपको आ जाएगी, बट व्हेन यू गेट कंफ्यूज्ड, व्हेन यू गेट ऑब्स्टेकल्स, व्हेन यू गेट प्रैक्टिकल डाउनफॉल्स कि मैं ये चीज कहां से सीखूं, वहां पे आपका जब डाउनफॉल आता है, वो वाली विलिंगनेस लूज नहीं होने देनी इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड रादर टेल यू। एंड सेकंड चीज, पूछने से मत घबराओ। There is an entire advertiser community. There are groups, Facebook groups dedicated for Google Ads, and people who love discussing about Google Ads. One of them happens to be me. मुझे बहुत पसंद है कि लोग मुझसे आगे डाउट पूछें, कुछ भी पूछ लो, पर पूछो। Do not stop yourself from asking कि how will you sound. अगर आपके पास willingness है एक चीज को complete करने की और आप में actually में
अपफ्रंट अप्रोच करने का हेजिटेशन नहीं है, आई थिंक यू कैन कंप्लीट एनी गिवन कोर्स, नॉट ओनली गूगल एड्स। और फोकस गूगल एड्स के साथ लोग फेसबुक एड्स, एसईओ साथ साथ शुरू कर देते हैं कि कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा। कुछ ना कुछ समझने के लिए नहीं पढ़ना, एक चीज को पूरा ढंग से पढ़ने के लिए पढ़ना है। दैट इज आई थिंक वन ऑफ द प्राइम रीजंस कि मैंने सिर्फ गूगल कंपटीशन में सीखा कि अगर मैं गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एसईओ ये सब साथ में सीख रहा होता, शायद मैं एक चीज में एक्सपर्टीज गेन नहीं कर पाता 8 मंथ्स के टाइम फ्रेम। वेरी गुड पॉइंट, राइट। तो ये शायद लोग आपको नहीं बताएंगे। इनफैक्ट अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको बताएंगे कि हम आपको ये भी सिखा देंगे, वो भी सिखा देंगे। आपको सब कुछ नहीं सीखना, ये आपका नहीं है। मतलब आप कोई कंपनी भी ज्वाइन करोगे तो वो आपसे सब कुछ नहीं कराने वाले। अगर मतलब कोई भी, हर किसी का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग स्किल सेट होता है, प्रोफेशनलिज्म हर कोई अलग अलग तरीके से कैरी करता है। आपको अपनी एक्सपर्टीज चुननी है और उसमें आपको ये अश्योर करना है कि आपसे बेटर कोई नहीं। दिस इज द गोल टू परस्यू, राइट। अब मैं आपको सोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। skillshop.google.com is one of the primary sources for learning anything related to Google Ads, hands down to that. Also, ये इंटरव्यू इतने सही टाइम पे शेड्यूल्ड है कि ये वाला लर्निंग रिसोर्स आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। गूगल एड्स एक नए तरीके से अप्रोच कर रहा है आपको सिखाना। गूगल एड्स आपको एक डमी अकाउंट देगा आपसे, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लोगों का हेजिटेशन क्या होता है कि गूगल एड्स सीखने के लिए मुझे पैसे डालने पड़ जाएंगे, एड्स बनानी पड़ जाएंगी, मेरे पास वेबसाइट तो है नहीं, मैं ऑप्टिमाइजेशन सीखूंगा कैसे। ये आपके डर भगाने के लिए, जैसे गूगल पहले एनालिटिक्स समझाता था, आई डू नॉट नो अगर आपको एनालिटिक्स पता है नहीं पता, बट गूगल एनालिटिक्स में भी एक डेमो अकाउंट मिलता है। और गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स में भी अब आपको एक डेमो अकाउंट मिलेगा जिसपे आप अपना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आई क्लेम टू यू कि अब तक गूगल एड्स के किसी भी पॉडकास्ट में ना मैंने किसी को बताया, ना किसी को मैंने बोलते हुए सुना है। राइट, मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। गूगल आपको डेमो अकाउंट देगा। राइट, मैं लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में बोल दूंगा दिव्यांशु को डालने के लिए। एंड before Divyanshu says it to you, I hope you have hit the like button because we are trying to create a value bomb for you. Exactly, and this is something I am also listening first time. Like I have also been practicing in Google Ads, so मैंने भी नहीं सुना, so thank you Raghav for this. So मतलब डमी अकाउंट के बारे में थोड़ा और बताओ। उसमें हमें एक बजट मिलेगा, मतलब जो डमी काइंड ऑफ होगा वो बिल्कुल सेम फ्लो में काम करेगा जैसे गूगल एड्स में। डमी अकाउंट के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी अपने YouTube चैनल पे। उसका भी लिंक अगर आप दिव्यांशु माइंड ना करे तो आप डाल सकते हैं। मैं आपको एक जनरल कंटेक्स्ट देता हूँ। गूगल डमी अकाउंट एक बेसिकली एक सिनेरियो तुम्हें देता है जिसमें तुम्हारा सपोज CTR इतना खर्च हो चुका है और CPC इतना आ रहा है, तो तुम कैसे ऑप्टिमाइज करोगे उसके बारे में वो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देता है, जैसे एक नेक्स्ट 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 करके, कि गूगल कैसे आपको रिकमेंड करता है एक चीज को कैसे रोकना है। कौन सा कीवर्ड काम नहीं कर रहा तो उसको रोक दो, कौन सा कीवर्ड काम नहीं कर रहा तो उसकी बिड कैसे कम करनी है। एक एक चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको ओवर, आई डो नॉट नो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन बिकॉज अभी भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इतना डिटेल में मुझको खुद नहीं पता है, बट it seems to be a very full of learnings and resourceful type of a resource. Right. So no problem, that we will discuss with Raghav in future maybe sometime. जितने भी terms अभी राघव ने यूज किए, CPC, CTR, everything, we will keep another podcast with you Raghav, and I'm calling you once again for this. एक लास्ट चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ guys, गूगल एड्स का इंटरफेस बहुत लोगों के लिए आसान है पर बहुत लोगों के लिए मुश्किल भी है उसमें नेविगेट करना। तो आई डो नॉट थिंक कि ये भी आपको लोग बताते हैं नहीं बताते, बट एक क्वेश्चन मार्क और हेल्प का बटन है गूगल एड्स के इंटरफेस के अंदर ही। कोई भी टाइटल CTR आपको समझ नहीं आ रहा, उस पर आप अगर होवर करते हो तो गूगल की जो डेफिनेशन है आपको उसी वक्त पता लगती है। आपको नहीं पता चल रहा कि सर्च इंप्रेशन शेयर, एब्सोल्यूट टॉप इंप्रेशन शेयर परसेंटेज क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आप उस पर अपना माउस होवर करो, आपको वो उसी टाइम डेफिनेशन विद एन एग्जांपल होपफुली बताएगा। राइट। और क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है हेल्प का बटन, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाता है विद गिवन एग्जांपल्स फ्रॉम द एडवर्टाइजर कम्युनिटी जो गूगल की खुद की। राइट, सो ये एक तरीका हमें पता चला आज। राघव, सो जो न्यूबी अभी आ रहे हैं उनके लिए और क्या तरीके हो सकते हैं? सपोज जिन्होंने यूनिवर्सिटीज भी, वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, बट वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट, और गूगल कंपटीशन में भी उनके लिए नहीं है, बट वो फिर और क्या कर सकते हैं अपना करियर इसमें आगे ले जाने?
फर्स्टली मैंने आपको जैसे बताया कि एक रिसोर्स इसमें से आपको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा. अगर आप डेमो अकाउंट से शुरू करना चाहते हैं, आप डेमो अकाउंट से कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर से बेटर कोई एक्सपोजर नहीं होता. वो कहते हैं कि इंग्लिश पढ़कर नहीं बोलकर समझ आती है, और बोलना इंग्लिश में उतना इंपॉर्टेंट है जितना लिखना और उसको पढ़ना. तो जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप करोगे नहीं, तो आप समझोगे कैसे और बताओगे कैसे दुनिया को कि आप समझ पाए हो कि नहीं पाए हो. तो आपको जो रिजल्ट्स लाने हैं, आपको उसके लिए क्लाइंट को फेच करना बहुत जरूरी है, जो शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए इस पॉडकास्ट का, और हमने डिसाइड भी किया था. दिव्यांशु, हम बात करेंगे. तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे बता देता हूँ कि जैसे एक वीडियो में आई फॉलो संदीप महेश्वरी वेरी रिलीजियसली. तो एक वीडियो में संदीप महेश्वरी ने बताया कि अगर आपको खिलौने की दुकान खोलनी है तो आपको कहाँ खोलनी है? तो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के पास खोलनी है. राइट. जहाँ पे बच्चे अपना इलाज कराने जाते हैं और रोते रोते बाहर आते हैं, तो वहां पे आप खिलौने की दुकान खोलोगे तो वो बिकेगा. इससे हमने एक्चुअली में सिर्फ ये कंटेक्स्ट लेना है कि जरूरत एक्चुअली में आप जिस बिजनेस को ढूंढ रहे हो, जिसके लिए आप मार्केटिंग करना चाहते हो, वो कहाँ जाते हैं. मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ. अगर आज के टाइम पे मैं टीचर्स के लिए मार्केटिंग करना चाहता हूँ, तो सबसे ज्यादा टीचर्स को कौन लोग जानते होंगे? स्टूडेंट्स. राइट. हर एक स्टूडेंट किसी ना किसी टीचर को, एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर, स्कूल इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट स्कूल इंस्ट्रक्टर, जो आर्ली बेसिस पे चार्ज करता है या फिर इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाने को, कोई ना कोई जानता है. ठीक है. एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो टीचर्स के फेवरेट होते हैं. आई जस्ट वांट टू नो द टॉपर्स हु हैव a lot of who have taken a lot of studies classes in 9th to 12th grade, and I just want to approach them कि मुझे नंबर प्रोवाइड कर दो या मेरा रेफरेंस दो, और उनके लिए मैं फ्री में मार्केटिंग करूँ. एक आपको अच्छा टेस्टिमोनियल बहुत जरूरी चाहिए. मैं बहुत रिलीजियसली बिलीव करता हूँ that you do not deserve anybody's money if you are not good for what you are saying to commit. Right. Don't fake that expertise. एक एथिक होता है. अगर ये एथिक आप फॉलो करते हो रिलीजियसली अपने किसी भी करियर में, मैं गूगल एड्स की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, पर किसी भी करियर में, तो आपको और बिजनेस आना लेजिट है. अगर आपने सपोज एक साइंस टीचर को पिच किया 11th क्लास के ट्यूशंस के लिए और आप उनके लिए रिजल्ट्स ला पाए, चांसेस हैं कि उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो मैथ्स, इंग्लिश, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते होंगे, वो भी अपना बिजनेस आपको देंगे. बिल्कुल. एंड बहुत लेजिटिमेट बात है कि जब स्कूल में हम बात करते तो एक स्टाफ रूम में सिर्फ एक टीचर नहीं होता था, बहुत टीचर्स होते हैं. तो एक टीचर के कम्युनिकेशन में कितने टीचर्स होते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते. राइट. सेम अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ तो ऑथर्स की बात करता हूँ. टीचर्स ऑथर्स को जानते हैं, ऑथर्स भी टीचर्स को जानते हैं. तो मेरा नेक्स्ट स्टेप, अगर मुझे टीचर्स के आगे बढ़ना है, मैंने अगर टीचर्स एक मार्केटिंग में कवर कर लिया, तो बहुत सारे टीचर्स को यूजुअली ऑफर्स आते हैं. लॉजिकली सोचा जाए कि आप हमारी बुक को प्रमोट कर दीजिए अपने स्टूडेंट्स में, हम आपको रॉयल्टी देंगे, हम आपको कमीशन देंगे. तो ऑथर्स उनको अप्रोच करते हैं. तो व्हाई नॉट कि आप टीचर्स को बोलो कि हम ऑथर्स को अप्रोच करते हैं. राइट. एक क्रॉस कनेक्शन मार्केटिंग. आपको अपना फर्स्ट क्लाइंट लाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एक सोर्स को फॉलो करना है रिलीजियसली. बहुत सारे तरीके ऐसे, आप किसी के बारे में भी सोच सकते हो. लाइक मैं जैसे अपना एग्जांपल देना चाहूंगा. हमने अप्रोच किया था एक गारमेंट स्टोर को. सो वी टोल्ड देम कि हम आपका 15 to 20 डेज फ्री में करेंगे. You just give us 5,000, and if we could get you sign-ups, or you can say कोई भी रीच अगर आपको दे देते हैं और आपको एक क्लाइंट भी उससे आ जाता है, एक कॉल भी अगर आ जाती है, तो आप समझ लेना कि वो मतलब सक्सेस है. तो we can start working for you further also. तो ये तरीका अच्छा है. और दो चीजें होती हैं इसमें. The reason I have a industry specific podcast on my YouTube channel is primarily because लोगों को ना इंडस्ट्री की गाइडेंस होनी बहुत जरूरी है. तो अगर आपको आज समझ नहीं आ रहा, आपके पास एक नया क्लाइंट आया जिसमें आप वो बोल रहे हैं कि मुझे बॉडी मॉइस्चराइजर्स की प्रमोशंस करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मे बी शायद FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की मार्केटिंग के लिए कोई अगर इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मैं पॉडकास्ट देख लूं, या मैं उनसे डायरेक्टली जाके लिंक्डइन पे कम्युनिकेट कर लूं, एक एवरेज CPC और CTR का आइडिया मिल जाए मुझको. ठीक है. और अगर मुझे पता चल जाए कि कॉस्ट कितनी लग सकती है और कितने लीड जा सकते हैं इतनी कॉस्ट में, तो आई थिंक मैं जो आगे आने वाले क्लाइंट्स हैं उनको भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी उस बेंचमार्क से पुश कर पाऊंगा. राइट. तो एक ये चीज होती है कि आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गाइडेंस लेने में हेजिटेट ना करें, जो मैंने आपको लर्निंग के लिए भी बताया था.
और दूसरा कंसिडरेशन ये है कि कीवर्ड प्लानर एक गूगल का टूल है जो एक तो आपको बोलता है कि जो बेसिकली कीवर्ड्स कौन से आप यूज कर सकते हो, दूसरा आपको बताता है कि फोरकास्ट, अगर आपके एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स है तो उस पर फोरकास्ट क्या निकले। तो फोरकास्ट वाला सेक्शन लोग यूज करना भूल जाते हैं, जो मैं हेवीली रिकमेंड करता हूं कि बिना कीवर्ड फोरकास्ट के आप किसी क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस सेट करने का सोचना भी मत। ओके, राइट। सर राघव, जैसे गूगल एड से लोग स्टार्ट कर देते हैं, और कौन कौन से अदर फैक्टर्स हैं जो वो मिस कर जाते हैं, जो गूगल एड्स के बाहर और सराउंडिंग रिवॉल्व करते हैं, जो हमें फोकस करने पड़ते हैं? लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स। राइट दिव्यांशु, आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि लोग गूगल एड्स के बारे में बात तो बहुत कर लेते हैं, पर उससे डिपेंडेंट फैक्टर्स बहुत सारे हैं। राइट। हम एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस चीज की जरूरत होगी। हम जनरली जब एक बात कर रहे हैं गूगल एड्स की, तो गूगल एड्स किस लिए होता है? एडवर्टाइजिंग के लिए होता है। एडवर्टाइजिंग किस चीज की होती है? बिजनेस की होती है। तो पहला कंसेप्ट तो मुझे ये क्लियर हो गया कि मुझे बिजनेस समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस क्या है। आप एडवर्टाइजमेंट में उनको 500 लीड्स ला के दे दो, क्या पता उनके पास सेल्स टीम ही ना हो जो 500 क्लाइंट से डील कर पाए, है ना? आपको पता होना चाहिए कि उनकी बिजनेस सेट रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्या पता उनके पास बिजनेस अच्छा खासा आ रहा हो पर रिटर्निंग कस्टमर्स ना हो, तो आपकी गूगल एड स्ट्रेटेजी का वो करेंगे क्या? बिल्कुल। तो बहुत सारी एक्चुअली में बिजनेस के जो पेन पॉइंट है उनको समझ के आपको एडवर्टाइजिंग करनी है सबसे पहले। तो लोग यही भूल जाते हैं कि कीवर्ड्स इज नॉट द थिंग, देयर इज मोर टू बिजनेस। You talk business, you do not talk about keywords, you do not talk about ads, RSA, DSA, call only, whatever. It is a secondary part. Okay, it is a secondary part. First, try to understand what the business is actually expecting. Put up a legitimate goal around it. कि बॉस, अगर आप इतना बजट लगाओगे तो अभी आपको करंटली आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है? मतलब आपकी वेबसाइट पे अगर कोई भी बंदा आता है तो कितने चांसेस है 100 में से कितने लोग कन्वर्ट कर पाते हैं? ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ 1000 लोग अगर वेबसाइट पे आते हैं तो 3% कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, चलो मैं 3% बोलता हूँ, तो इसका मतलब हो गया 30 लोग बेसिकली आपके कन्वर्ट। ठीक है, 3%, अल्टीमेटली 3% मेरा कन्वर्जन रेट हो गया। राइट। अब मेरे को कैसे पता चला कन्वर्जन रेट है? एनालिटिक्स। बिजनेस आपने समझ लिया, पर अब आपको एनालिटिक्स समझना जरूरी है कि ये 3% क्यों है, इसमें क्या एक्चुअली में, इफ आई से द वर्ड लोचा, ये 3% क्यों है, ये 5% क्यों नहीं है, ये इंडस्ट्री बेंचमार्क से रिलेटेड क्यों नहीं है? अगर अनबाउंस.com जैसी कंपनी जो लैंडिंग पेज में स्पेशलाइज करती है वो बोलती है कि आपका कन्वर्जन रेट 6% होना चाहिए इस इंडस्ट्री में अगर आप बिलोंग करते हो, और आपकी करंट वेबसाइट का कन्वर्जन रेट 3% है, तो 3% लायक क्यों है? पहले ये समझो। आप एड्स चला लोगे, मुझे आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, अगर आपने सीखा तो आप चला लोगे, दैट इज नॉट अ बिग थिंग टू डू इफ यू डू इट डेडिकेटेडली, बट रिजल्ट्स ला पाओगे इसकी गारंटी एड्स चलाने से नहीं है। ये कनेक्टेड डॉट्स हैं, बट कनेक्ट करना इनको जरूरी है। तो पहले बिजनेस समझा, बिजनेस कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, उसके फोकस पॉइंट्स क्या है, एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एनालिटिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो मर्जी हो वो अचीव अभी क्यों नहीं कर पा रहा, ये तो मैं एनालाइज करूंगा ना। तो सपोज उसकी वेबसाइट बहुत स्लो है, सपोज, तो उसको आपकी जेन्युइनली बताऊं तो एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। उससे पहले उसको जरूरत है अपनी वेबसाइट डेवलपर को ज्यादा पैसे देकर वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कराने की। राइट। उसको अगर अब मैं बात करूं कि अगर उसकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड है, 3% उसका कन्वर्जन रेट, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन से पेजेस हैं उसके, कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो रादर जो उसके सबसे ज्यादा बिकते हैं, और उन सबसे ज्यादा बिकने वालों पे आप पैसा लगाओगे। राइट। आप उस घोड़े पे पैसा लगाते हो जो जिसके जीतने के चांसेस हो, करेक्ट? ज्यादा। तो वही प्रोडक्ट चूज करो जिसके एक्चुअली में कन्वर्ट होने के चांसेस बाकी प्रोडक्ट से ज्यादा है। नोबडी इन द वर्ल्ड केयर्स कि आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ उसकी बात करो। एडवर्टाइजिंग में जो आपको एक रिटर्न लाके देने में आप भी कॉन्फिडेंट हो, आपकी एड्स भी कॉन्फिडेंट हो, और आपके एनालिटिक्स उसी बात की गवाही दे रहे हो एक तरीके से। I may be sounding it like a picture, but that is how it is. No, बिल्कुल, I totally agree. भूल जाते हैं। बिल्कुल, लोग मतलब गूगल एड सीख के उसे सीधा स्टार्ट, मतलब पैसे लगाना शुरू कर देते हैं
कि भैया कीवर्ड्स निकाल लिए, चलो पैसे लगाते हैं, बिजनेस आ जाएगा। बट ये सारी चीजें राघव ने बताई हैं बहुत जरूरी हो जाती हैं कि आप अपना लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज करो, आपका क्या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से ऑफर दो, आपका कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है, तब जाके आपके उन कीवर्ड्स पे आपको सेल आएगी। दिस इज व्हाट राघव इज सेइंग एक्चुअली। एब्सोल्युटली। और आपकी इसके साथ वेबसाइट, एक और चीज, राइट, सॉरी टू इंटरप्ट दिव्यांशु, बस मेरा एक पॉइंट रह गया इसमें। बेसिकली अगर आप बात करते हो, अगर आप बोलो कि हमारे पास तो एनालिटिक्स है ही नहीं, अब हम क्या करें? हम तो एक नया बिजनेस है, हमने अभी भी स्टार्ट किया। बहुत सारे केसेस में आपको, जब आप नए बिजनेस स्मॉल स्केल शुरू करते हो, तो आपको नए बिजनेसेस से बहुत सारे इनकाउंटर्स होते हैं, जो आप शायद ऑलरेडी जानते ही होंगे कि हमारे पास तो डेटा ही नहीं है, तो हम क्या ऑप्टिमाइज करें, मतलब। हाँ, वो बोलेंगे एनालिटिक्स, वो क्या होता है जी? तो डोंट वरी, आपने शायद एनालिटिक्स इंस्टॉल नहीं किया, पर आपके कंपटीशन ने जरूर किया। राइट। अब आपको एनालाइज करना है कि अगर सपोज आप आज इंश्योरेंस बेचते हो, तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कौन सी चीजें अपने लैंडिंग पेज पे बोलता है। क्या वो बोल रहा है कि 99.9% आपका क्लेम कवर होता है इसमें? क्या वो बोल रहा है कि आपका 85 एक्सटेंडेड में सिर्फ इतने रुपए में दे रहा हूँ? कौन सी चीजें वो अपने उसमें पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है, उसका एम्बेसडर कौन है, उसने कितना लंबा पेज बनाया हुआ है, कौन सी चीजें वो टर्म्स एंड कंडीशंस में बोल रहा है, और कौन सी चीजें वो नहीं बोल रहा है जो उसे बोलनी चाहिए, उसके फॉल्ट्स क्या है, आप वो पिच करो। राइट। It is not about your product first, it's about how you beat others product first, राइट, because you are consistently in the game of outshining. Yeah, right. You're consistently in the game of defeating the competition by all the means, hands down. Right, totally. So मतलब वही बात हो गई, सामने वाला कोल्ड कॉफी बेच रहा है तो तुम उसमें चॉकलेट डाल के बेचो और आइसक्रीम डालो, इससे अलग हो जाओ। So start something अगर आप नहीं भी बेच सकते, क्योंकि अगर आप आइसक्रीम डालोगे तो आपको पैसे बढ़ाने पड़ जाएंगे, बिकॉज आपकी कॉस्टिंग वैसी नहीं बैठेगी। बट आप जरूर ऐसी चीजें कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा गाइस कि आप आइसक्रीम डालो, चॉकलेट डालो। देख लो अगर वो बंदा कोल्ड कॉफी बेच रहा है, अगर वो बंदा कोल्ड कॉफी बेच रहा है, तो आप बेचोगे बायोडिग्रेडेबल क्लास में, जिसमें क्या होगा, आप लोगों को बोलोगे वी लव द एनवायरनमेंट। राइट। मैं आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ज्यादा बेचो या महंगा चीजें बेचो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, शायद इससे आपकी कन्वर्जन डाउन भी हो सकती है अगर आपके पास एक चीप ऑडियंस आती है तो। चीप का मतलब अफोर्डेबल सेंट्रिक, प्राइस सेंट्रिक से मतलब है। अगर आप वो नहीं बेच सकते, तो आप बोलो कि आप हर कॉफी बेचने पे एक प्लांट करोगे, एक ट्री प्लांट करोगे। यू नीड टू ड्राइव योर ऑडियंस इन लॉजिकल, इमोशनल और सम सॉर्ट ऑफ कन्वर्टिंग वे। ये बात आपको सोच के चलनी पड़ी। जरूरी भी नहीं है कि आप बायोडिग्रेडेबल बेचो दिव्यांशु। मैं आज बोल दूंगा कि अगर मैं एनवायरमेंट फ्रेंडली फूड होना चाहता हूँ, बिकॉज कोको बीन, कॉफी बीन से चीजें प्लांटेशन के बेसिस पे जरूर जाती हैं, इसलिए स्टारबक्स और बहुत सारी कंपनीज का लोगो ग्रीन होता है। तो इको फ्रेंडली चीजें अगर आप कंसिडर करना चाहते हो, जरूरी नहीं है बायोडिग्रेडेबल आप अफोर्ड कर पाओगे। आप अगर ये भी बोल दो कि विद एवरी कॉफी कप सेल वी प्लांट वन ट्री, दिस कैन ऑल्सो बी, you can pitch all the environment lovers with your product. Go for it. Let's say you avoid tissues, 100% ban of plastic in my coffee shop. You can do it. You just need to have a vision कि अगर मेरा competition ये कर रहा है, मैं उससे outshine करने में किस audience को कौन से तरीके से pitch कर सकता हूँ। Right. So to master Google Ads, it's not only Google Ads. You need to analyze whole business. अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करो, अपने बिजनेस को एनालाइज करो, और कैसे स्टार्ट करना है। जैसे राघव ने बताया, अगर आप अभी यूनिवर्सिटी में हो, आप कंपटीशन करो, गूगल कंपटीशन में इनरोल करो, टीम बनाओ, टीम फॉर्म करो। इसके बारे में और आपको डिटेल्स चाहिए तो हम आपको लिंक दे देंगे जहां पे ये सब दिया हुआ है, आप कैसे इनरोल कर सकते हो। दूसरा, जैसे राघव ने बताया कि आप अपने किसी भी क्लाइंट के पास जाके पिच करो कि हम आपके लिए गूगल एड्स करेंगे, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू मेक इट परफेक्ट, राइट? So this is how Raghav also started, and he is doing amazing right now. Thank you. So I think we have time constraint, Raghav, today. So मैंने आपको लेट भी काफी कर दिया था. No worries, Divyanshu. But guys, अगर आपको कोई भी questions है, I would love to answer each and every doubts or concerns that you might have throughout this podcast. Whatever confusions were there, please feel free to drop down the comment, and I will ensure कि मैं उनको पर्सनली आंसर करूं, बिकॉज दिव्यांशु इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब ओवर हियर, एंड kudos to दिव्यांशु
थैंक यू सो मच राघव, थैंक यू। सो थैंक यू बेटा। नेक्स्ट एपिसोड हम जरूर रखेंगे, गूगल एड्स के अंदर थोड़ा डीप डाइव करेंगे। आज हमारा था कि हम कैसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं विद गूगल एड्स, एब्सोल्युटली। and that too with Raghav Shadija. You could please check his profile. You should visit his Instagram, his Facebook, and follow him. He is totally approachable. Like, you just ping him and he will answer you. He is that friendly and that super supportive guy. So thank you so much, Raghav, Also, for do being not here forget to today. subscribe my YouTube channel. दिव्यांशु, Yes, मेरे YouTube channel का भी लिंक डाल देना। बिल्कुल राघव, आप जैसे कि देख रहे हो RAWGHAV, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। वहां पे आपको अलग अलग इंडस्ट्री, लाइक रियल एस्टेट, आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स वहां पे हैं। आपको ORM, PPC, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको, बहुत नॉलेज। आप जहां भी स्ट्रगल कर रहे हो और आप राघव को पिंग कर सकते हो वहां पे। सो राघव, थैंक यू। How was the video? I hope it sounds some value to you, to the ones who are starting their career and to the ones who are into Google Ads. We have discussed many business strategies and also about Google Ads, Google competition, and everything. If you have any other questions left, please make sure you comment down below and we are here to help you. Bye.